قبائلی ضلع باجوڑ میں JUI کے ورکرز کنونشن میں زوردار دھماکہ۔ دہشت گردی کے واقعے میں 40 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ زخمیوں میں بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ فوج کی طرف سے فراہم 2 ہیلی کاپٹروں پر شدید زخمیوں کو دوسرے شہروں میں منتقل کیا گیا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں IG خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ بم ڈسپوزل یونٹ نے بھی خودکش دھماکے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ باجوڑ میں دہشت گردوں نے قیامت ڈھا دی۔ JUI کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ ہوا، درجنوں افراد شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے، بیشتر کی حالت تشویشناک ہے۔ KP کے ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں JUI کا ورکرز کنونشن جاری تھا، جس کے لیے مقامی قیادت اور کارکنوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ اس کے دوران زوردار دھماکہ ہوا، جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ ریسکیو اور دیگر امدادی اداروں نے زخمیوں اور جاں بحق افراد کی لاشوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کیا۔ شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر پر پشاور اور دیگر شہروں میں منتقل کیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعے میں کارکنوں کی بڑی تعداد جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، جبکہ جاں بحق افراد میں JUI خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان، سیکریٹری اطلاعات حاجی مجاہد اور ان کا بیٹا ضیاء الدین بھی شامل ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ جائے وقوع پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ IG KP کہتے ہیں کہ دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ JUI کے ترجمان حافظ حمداللہ نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ جہاد نہیں، فساد اور دہشت گردی ہے۔ ورکرز کنونشن میں مجھے شریک ہونا تھا، مصروفیات کے باعث نہ جا سکا۔ اس دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور ریاست اور حکومت دونوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی ایک ایسی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ان دھماکوں کا سد-جواب ہو۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا ایک پرامن ورکرز کنونشن تھا۔ بام ڈسپوزل یونٹ نے اپنی تحقیقات میں کہا کہ دھماکہ خودکش ہونے کے باعث خدشات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دھماکے میں 12 کلو گرام ہائی ایکسپلوسیو بارودی مواد کا استعمال کیا گیا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے باجوڑ خودکش دھماکے کی مذمت کر دی۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ باجوڑ دھماکے میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ افسوسناک واقعے میں بے گناہ جانیں ضائع ہوئیں اور کئی شہری بھی زخمی ہوئے۔ پرامن اور جمہوری معاشرے میں ایسی دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں۔ امریکہ مشکل ترین وقت میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب سعودی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ خودکش حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس ہوا۔ چین کے نئے وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ سمیت اعلیٰ حکام نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ چینی نائب وزیر اعظم CPEC کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ CPEC کی 10 سالہ تقریبات کے سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو سجا دیا گیا ہے۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ چینی نائب وزیر اعظم کی وفد کے ہمراہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور طارق فاطمی سمیت اعلیٰ حکام نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینی نائب وزیر اعظم CPEC کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ چینی نائب وزیر اعظم کے دورے کی اہمیت حالیہ 14 ماہ میں ٹرم اوور کا ثبوت ہے۔ یہ دورہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کیا ہے۔ یہ دورہ بہت اہم ہے، یہ CPEC کی کامیابیوں کا سنگ میل ہے۔ اس موقع پر چین کے نائب وزیر اعظم ایک خصوصی تقریب جو کہ 10 سالہ CPEC کے کامیابیوں کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اس میں چین کے صدر شی جن پنگ کی نمائندگی کریں گے، اس میں شریک ہوں گے، اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی شریک ہوں گے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لی فینگ اپنے دورے میں صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دونوں ممالک کے مابین باہمی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ دوسری جانب CPEC کی 10 سالہ تقریبات کے انعقاد کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ PM سیکریٹریٹ، سپریم کورٹ اور شکرپڑیاں سمیت اہم عمارتوں اور مقامات کو رنگین برقی کمکموں سے ایسی خوبصورتی کے ساتھ مزین کیا
गया कि रात को भी दिन का गुमा होता है। शाहराह दस्तूर की ग्रीन बेल्ट भी खूबसूरत बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी है। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स और दोनों ममालिक के परचम भी नस्ब किए गए। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का फैसला वज़ीर आज़म काबीना और इत्तेहादी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान बंद कमरों में नहीं होगा। मुशावरत के बाद जो भी नाम फाइनल होगा कौम के सामने आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बता दिया। कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला किया। इसी गिरोह ने 2014 में PTV पर धावा बोला था। साबिक़ हुकूमत ने सबसे पहले रेडियो और PTV की नीलामी का नारा लगाया। नवाज शरीफ ने IMF को खैर बात कह दिया था। नौजवानों की तरक्की से ही कर्जों में कमी आएगी, ये वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का विजन है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल, फैसले का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का फैसला वज़ीर आज़म काबीना और इत्तेहादियों ने करना है। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। आईनी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं ज़रूरी नहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका नाम पर ही इत्तफाक हो। नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ तो इंतखाबात 6 महीने ताखीर से होंगे। हम निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देंगे। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए तो फिर पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे, और अगर इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत कराने हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हल्का बंदियाँ दोबारा हों, फिर 5-6 महीने भी इलेक्शन लेट हो सकते हैं। हम अपनी मुशावरत अपोजिशन के सारे दोस्त कर रहे हैं और हमने हर सूरत 3 नाम देने हैं। उन्होंने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी 3 नाम देने हैं। उन 6 नामों में से किसी एक नाम पे मेरा और वज़ीर आज़म साहब का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का इम्कान यकसर रद्द कर दिया। क्या कहते हैं 5 नाम फाइनल किए जा चुके, कोई ब्यूरोक्रेट भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकता। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और इस पर तमाशा बने। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। हमने अपनी पूरी कोशिश की और तमाम अदायगियाँ कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख़याल, कहा IMF के साथ मुआहिदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचने वाले हैं। आने वाले 2-3 महीने की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। हमारी कोशिश है कि ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाएँ। उम्मीद है सितंबर में वर्ल्ड बैंक से 450 अरब रुपए पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रोडिक्शन की गई, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी, कि फलां पेमेंट नहीं होगी, फलां पेमेंट बहुत बड़ी है और ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की। और आज हम करीबन जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। तमाम पेमेंट्स करने के बावजूद और विदाउट IMF प्रोग्राम और विदाउट कोई इनफ्लो ऑफ बाहर से IMF और इस तरह की जो इनफ्लोज होती है, क्योंकि जब IMF ऑफ ट्रैक होते हैं तो तमाम पेमेंट जो रुक जाती है। अल्लाह का शुक्र है आपने आज वो कर दिया और विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अब मुझे आज के बाद इस कानून अमेंड होने के बाद जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे लोग, तो मैं समझता हूँ कि अक्टूबर में अल्लाह के फजल PI की जो फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दे दिया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्द सबके दुश्मन है। बिलावल भुट्टो ने कहा दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। खैबर पख्तूनख्वा फिर लहू लहू, बाजोड़ धमाके पर पूरी कौम गमज़दा। दहशतगर्दों को खत्म करने के अज़्म का इजहार। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो बोले कि वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाए। राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना फजल रहमान और मौलाना असद महमूद को टेलीफोन वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ की चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की भी बाजोड़ धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुफ्ती मुनीबुर रहमान, एमल वली खान, अख्तर जान मेंगल ने भी दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, मेयर कराची मुर्तजा वहाब समेत दीगर सियासी क़यादत ने वाक़े पर अफसोस और दुख का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। पाकिस्तानी फौज का तख्ता उलटने और खाना जंगी की साजिश की गई। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। चेयरमैन PTI की मुल्क दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को साजिश के तहत झूठे मुकदमे में सजा दिलवाई गई। जिन लोगों ने मुल्क के खिलाफ साजिश की उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में वतन वापस आएंगे। इलेक्शन जीते तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। साजिश की गई। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। चेयरमैन PTI की मुल्क दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को साजिश के तहत झूठे मुकदमे में सजा दिलवाई गई। जिन लोगों ने मुल्क के खिलाफ साजिश की उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में वतन वापस आएंगे। इलेक्शन जीते तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। लाहौर में मेडिकल सिटी, पावर प्लांट, शादरा तक काला शाह काकू तक मेट्रो बस ट्रैक। वज़ीर आज़म ने लाहौर में अहम मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा कि PTI हुकूमत में मईशत से खिलवाड़ किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करके उन्हें तरक्की के लिए संगे मील करार दे दिया। गवर्नर हाउस में 1263 मेगावाट के पावर प्लांट, काला शाह काकू में बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपस, लाहौर मेडिकल सिटी का क़याम। वज़ीर आज़म ने शाहदरा, काला शाह काकू, मेट्रो बस ट्रैक, रिंग रोड 7 किलोमीटर के SL3 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI को आड़े हाथों लिया। चंद बरस कबल चीनी सदर का दौरा मुलतवी होने की वजह PTI धरनों को करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के कहने के बावजूद PTI ने धरना खत्म नहीं किया। जिस तरह वहाँ पर घेराव किया गया और वहाँ पर धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे सीधा GHQ गया और जनरल राहील शरीफ जो उसको चपा सलार थे उनसे मुलाकात की और उनसे मैंने गुजारिश की कि वो भी अपनी कोशिश करें कि ये दौरा मुलतवी ना हो। तो बहरहाल शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम धरना 3 दिन के लिए भी ख़त्म नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि माजी में मईशत से खिलवाड़ किया गया। PTI हुकूमत की बैड गवर्नेंस ने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया। हवेली बहादुर शाह का तवानाई मनसूबा 2019 में 74 अरब रुपए का था। इस पर 77 अरब रुपए फालतू खर्च करना पड़े। इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाजी के दौर में हुआ क्या? 70 या 74 अरब रुपए का टोटल मंसूबा, उसके ऊपर जो वक्त लगा और कॉस्ट ओवररन्स हुई वो 77 अरब रुपए, यानी फजूल अपना हराम के तौर पर ये 70 अरब रुपए इसके ऊपर लग गए, इसलिए कि किसी को दिलचस्पी नहीं थी इसको मुकम्मल करवाया जाए। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में पंजाब गवर्नर बलीगुर रहमान, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी शरीक हुए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेटर्स के एतराज़ात के बाद ड्रॉ। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल सियासतदानों समेत सब पर कदगन लगाता है। बिल मंजूर हुआ तो बड़ा शिकंजा साबित होगा। JUI के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर बिल मंजूर हुआ तो वॉकआउट करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल तमाम जमातों के गले का फंदा बनेगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि राना सनाउल्लाह का ये बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। कामरान मुर्तजा और ताहिर बजिंजो के भी एतराज़ात। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा बिल उजलत में पास करने में कोई ममानियत नहीं, हम इस बिल में अपनी तरामीम लाएंगे। हुकूमती अरकान की तनकीद, इत्तेहादियों और अपोजिशन की भी मुखालफत। सेनेट में इंसदादे इंतहा पसंदी बिल ड्रॉप।
वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने इंसदाद इंतहा पसंदी बिल 2023 ऐवान बाला में पेश किया। वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने ऐवान बाला में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 पेश किया। अपोजिशन अरकान छुट्टी के दिन उजरत में बिल लाने पर अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती रुकन नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल अहमियत का हामिल है, इसे पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत कानून साजी कर लेती है, बाद में फंदा उसी के गले में आता है। जो हुकूमत बरसर इख्तिदार होती है उसको मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। ये कानून देंगे थानेदार के हाथ में, एसपी साहब के हाथ में, पुलिस के हाथ में। अगर आपने कोई जोर से भी नारा लगाया तो उसने कहा कि तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को। पीटीआई के सेनेटर हमायूं मोहम्मद ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने बिल पेश करने को हदफ पे तनकीद बनाया और बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। कल सर इस मुल्क में जो भी आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करे, इस मुल्क में मजलूम कौमों की बात करे, कमजोर तबकात की बात करे, सबसे पहले वो इसका निशाना बनेगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि ये बिल आइन और कानून के खिलाफ है। इंसदाद इंतहा पसंदी बिल के मुताबिक इंतहा पसंद जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के असास से प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम का लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का असलहा लाइसेंस मनसूख किया जा सकेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या पर पाबंदी आयद करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर या फर्द की पाकिस्तान के अंदर नक्लो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी लगेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शहर कायद में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। आज शहर के 10 मकामात पर एहतजाज और 4 अगस्त को एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरना दिए जाने का ऐलान कर दिया। जो कुछ वहाँ करबला के मैदान में हुआ था, जिस तरह से वहाँ पानी बंद किया गया था, उस सब को लोग याद कर रहे थे। तो इसी दौरान में हमने देखा कि इस बहुत बड़े इलाके का पानी का कनेक्शन काट दिया गया। और करने वाले कौन हैं? करने वाले जो वो हैं जो 15 साल से बरसर इख्तिदार हैं। वो कहते हैं कि नाजायज कनेक्शन बन गए हैं। ये कोई मरीख से आकर नाजायज कनेक्शन देकर गया है? क्या जुर्म किया है नॉर्थ कराची ने? क्या जुर्म किया है लांडी के लोगों ने? क्या जुर्म किया है नई कराची और सज्जानी वालों ने? उन्होंने आपके खिलाफ वोट डाले, इसलिए आप इंतकाम ले रहे हैं उनसे। ये इंतकामी सियासत नहीं चलेगी। ये पानी पे सियासत करते हो, बिजली पे सियासत करते हो, लोगों की बुनियादी जरूरियात पे डाका डालते हो और करप्शन का कारोबार करते हो। हम इनको एक्सपोज करेंगे। हमने फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह शहर में 10 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा पानी की इस बंदिश के खिलाफ। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह कहते हैं कि K4 मंसूबा 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और हमारी नीयत अच्छी है, चाहते हैं मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाए। माजी में मंसूबा किसकी वजह से ताखीर का शिकार हुआ, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने बताया, शहर कायद को पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। फराहमी आपके मंसूबे K4 के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कराची में पानी के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत से बात हुई है। जो सिस्टम ये पानी जाएगा तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना पड़ेगा। अब सेकंड जो पानी ये इतना बड़ा जाएगा, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आएगा जो अभी साथ में ही कंप्लीट हो रहा है और आगे लैंडिंग होगी, उसकी भी गुंजाइश रखनी पड़ेगी। खुर्शीद शाह ने मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि देखना होगा माजी में किसकी वजह से मंसूबा बेकायदगियों का शिकार हुआ। जवाब तो वही देंगे, चाहे मैं हूँ चाहे चेयरमैन साहब हैं, हमें देना है कि प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ। इससे पहले जो हुआ वो वाकई बड़ी ट्रेजेडी है, बड़ी ज़्यादती है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनके जिम्मेदार कौन है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे हुई, किसने की। उन्होंने मजीद कहा कि मंसूबे पर 10 से 12% काम मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल हो रहा है। स्टेट बैंक से फंड्स लेने के बाद पैसों का मसला नहीं होगा। $4 मिलियन के लिए LC भी खोलेंगे।